with reference to non-fungible tokens. Now look, what is fungible? If you have read economics, you know what is fungible. If you don't know, let's see. Non-fungible tokens, consider the following statement. They enable the digital representation of physical asset. So these are the tokens, and so tokens can actually enable the digital representation of the physical asset. तो इसको हम लोग अभी मानते नहीं है सच है कि झूठ है. दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स दैट एग्जिस्ट ऑन दी ब्लॉकचेन. थर्ड, they can be traded or exchanged at equivalency and therefore can be used as the medium of commercial transaction. तो यहाँ पे देख लो जी कि they can be traded or exchanged at equivalency and therefore can be used as a medium of commercial transaction. यहाँ पे what is this? Non-fungible. If these are non-fungible, how they can exchange at equivalency? Non-fungible means one can replace one. 100 rupee note can replace 100 rupee note. But if it is non-fungible, it can't be replaced. So this third statement is wrong, and the third statement is wrong. So you have remain with the only one option, that is A. That is 1 and 2. They are enable the digital representation of physical assets, and second, they are unique cryptographic tokens that exist on the blockchain. These two are correct. So if you don't know, still you can eliminate and you will have the answer. This you should have this basic understanding of what is fungible and what is non-fungible. Then you can actually eliminate and you can get the right answer. So here you can apply logic, but only when you have read basic book of economics, basic understanding what is fungible, what is not fungible, what is currency tokens, and what are their properties. So what is properties of money? If you have read that, this question was very easy. Next question, consider the following statement. Vietnam has been one of the fastest growing economies in the world in the recent years. Second, Vietnam is led by the multi-party political system. Third, Vietnam's economic growth is linked to its integration with global supply chain and focus on export. Fourth, for a long time, Vietnam's low labor cost and stable exchange rates have attracted global manufacturers. Vietnam has the most productive e-service sector in the Indo-Pacific region. अब यहाँ पे या देखो एक्सट्रीम स्टेटमेंट मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर, ये थोड़ा सा फार-फ्लैंग नहीं लगता है? इंडो पैसिफिक में बाकी सब इतने कंट्रीज होके भी वियतनाम अगर सबसे एडवांस है, थोड़ा सा फार-फ्लैंग लगता है. ठीक है, हम लोग देखते हैं वियतनाम हैज़ बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन दी वर्ल्ड इन रिसेंट ईयर. तो ये स्टेटमेंट सही है. ए एंड बी चला जाएगा. एशियन कंट्रीज़ में एशियन कंट्रीज आर बेसिकली फास्टिंग ग्रोइंग इकोनॉमीज. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. देन देखो, वियतनाम इज लेड बाय द मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम. इफ़ यू नो वियतनाम्स इंडिपेंडेंस वॉर, तो वियन कॉन्ग, हो ची मिन, तो हो ची मिन was actually communist, and Ho Chi Minh actually liberated Vietnam from the clutches of France and USA. So it is not multi-party political system. If you know the history of it, you know this is the communist country. Second statement is wrong and eliminate second statement. Second statement गया, आपका आंसर एक ही रह जाता है, that is C. आपको बाकी का पता होने की ज़रूरत भी नहीं है कि ये, पर फिर भी आपको ये भी पता होगा कि लो लेबर कॉस्ट होगा एंड स्टेबल एक्सचेंज रेट्स होंगे. अब वियतनाम जैसे कंट्री में ज़्यादा डेवलप नहीं है, वहाँ पे लेबर कॉस्ट कम होगा क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होगी. एंड दिस लास्ट स्टेटमेंट की मोस्ट प्रोडक्टिव यूज सर्विस
सेक्टर इन द इंडो पैसिफिक रीजन, वहाँ पे इतने बाकी के एडवांस कंट्रीज है, उसके सामने वियतनाम का सबसे एडवांस प्रोडक्टिव होगा, ये फारफेज लगता है, ये ट्रू लगता ही नहीं प्राइमा फेसी। इसका आंसर इज सी। ठीक है, तो थोड़ा सा कोई भी लॉजिक लगा के आप इस क्वेश्चन में तो बहुत सारा लॉजिक ही था, आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स: परिंद्र कुमार घोष, जगदीश जोगेश चंद्र चैटर्जी एंड रास बिहारी बोस। हु ऑफ द अबव वॉज वेर एक्टिवली एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी? अगर आपको पता होगा, बरिंद्र कुमार घोष ये अरबिंदो घोष के भाई थे, और अरबिंदो घोष को और इनको दोनों को स्वदेशी मूवमेंट के बाद अरेस्ट किया गया था। इनको एक्चुअली में नीचे भेजा गया था सेलुलर जेल में, अंडमान निकोबार में। वो अगर आपको पता नहीं भी होगा तो अभी आपको पता था कि अरबिंदो घोष तो सन्यासी ले लिया था उन्होंने, बरिंद्र घोष को सज़ा हो गई थी। तो गदर पार्टी का जो बेसिकली जो आंदोलन है, जो मूवमेंट है, विच एक्चुअली टुक स्पेस फ्रॉम दी 1910-11, तो इस समय में बरिंद्र कुमार घोष होने के चांसेस बहुत कम है। एक को अगर हम लोगों ने हटा दिया तो आंसर ओनली बी या ओनली सी इसे एक आता है। राज बिहारी बोस तो अब एक्टिव थे, वो बाद में भाग गए नेपाल के थ्रू, फिर आगे जाके जापान वगैरह में गए। जोगेश चंद्र चटर्जी आपको पता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के फाउंडर वगैरह थे। तो इसका आंसर आपको ऑब्वियसली 50-50, अगर दोनों में से नहीं पता है तो 50-50 मारोगे। जिसको पता है कि राज बिहारी बोस ये 1911 के जब कैपिटल शिफ्ट हो रहा था, तब गवर्नर जनरल के हाथी पे जो अटैक हुआ था एलिफेंट पे, उस पर भी पार्टिसिपेट उनका नाम आया था। तो ऑब्वियसली इसका आंसर डी होने के चांसेस ज़्यादा है, ही वॉज मोर एक्टिव इन दैट फेज। तो ऑब्वियसली इसका आंसर राज बिहारी बोस होगा, दैट इज़ डी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब आपको हिस्ट्री के बारे में क्या है पता है। इफ़ यू हैव सम आइडिया ऑफ इट, आपको उसका टाइम फ्रेम पता है, उसका ईयर पता है, वो कब कौन सी पार्ट में एक्टिव था, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, ये पता होगा, तो दे यू कैन एलिमिनेट सम ऑप्शंस एंड कैन एक्चुअली गो टू द राइट आंसर। बट इफ़ यू डोंट नो देन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ लॉजिक लग नहीं सकता है, अगर इफ़ यू डोंट नो द करेक्ट आंसर। तो इसको ध्यान में रखो, हिस्ट्री में ना बहुत ज़्यादा लॉजिक लगने के चांसेस वैसे होते हैं, पर आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना ज़रूरी है। विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग टेक्स्ट: नेट्टी पकराना, देन परिशिष्ट परवाना, देन अवदान अशाटका एंड त्रिशिस्तील लक्षणा महापुराणा। तो विच ऑफ द अबव आर दी जैन टेक्स्ट? यहाँ पे देखो, मैंने जो लॉजिक लगाया था कि नेट्टी पकड़ना ये जो है, ये थोड़ा सा मुझे पाली लैंग्वेज जैसा है। अगर आपने जिन्होंने भी अशोकन इंस्क्रिप्शन के बारे थोड़े से पढ़े होंगे तो आपको पता है कि देवनाम पियादासी वगैरह ऐसा, तो ये थोड़ा सा पाली लैंग्वेज जैसा उसका टच है। और पाली लैंग्वेज में जो लिटरेचर है, मैक्सिमम बुद्धिस्ट लिटरेचर है। मैंने इसको अगर 1 अगर हटा दिया तो ए एंड सी चला जाता है, आंसर रहेगा बी एंड डी में से एक। अब हम लोगों को तीसरा है अवदान शतका। हम लोगों को मतलब मुझे तो इसका कुछ पता नहीं था, अगर आपको नहीं पता है तो आप मार सकते हो। मुझे ये पता था कि महापुराणास आर पार्ट ऑफ द जैन लिटरेचर, बट वो लॉजिक लगा के भी कुछ आंसर आ नहीं रहा था। तो ये एक्चुअली वॉज नॉट पार्ट, और इसका आंसर था बी 2 and 4। तो इसका आंसर इज 2 and 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन:
With reference to Indian history, consider the following statement. The first Mongol invasion of India happened during the reign of Jalaluddin Khilji. During the reign of Alauddin Khilji, one Mongol assault marched up to the Delhi and besieged the city. ठीक है. Muhammad bin Tughlaq temporarily lost portion of the northwest of his kingdom to Mongols. Which of the statement given above are correct? अगर आप लोगों को पता है कि मंगोल्स इन्वेजन इल्तुतमिश जब भी था तब से हो रहे थे, तो आपको पता है जलालुद्दीन खिलजी के बहुत पहले ही हो रहे थे. तो नॉट फर्स्ट मंगोल इन्वेजन हैपेंड देन. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. अगर फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग तो हम लोगों का ए एंड सी चला जाता है. ओनली बी एंड डी में से 50-50 आपको चूज करना है. ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्ट मार्च अप टू दी दिल्ली एंड बेसिज दी सिटी. तो ये या सी दोनों में से एक है. इसका आंसर ऑब्वियसली बी है. अगर जिन्होंने भी सतीश चंद्र पढ़ा होगा तो उनको पता है, बेसिक ही बहुत ही कॉमन सेंस नॉलेज का एक क्वेश्चन है. इसका आंसर बी है. ठीक है. आगे का क्वेश्चन. विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. इफ द रूपी इज rapidly depreciating, RBI is likely to sell the dollars in the market. If interest rates in the USA or European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. अब इसमें एक आपको ये पता होना चाहिए कि ओपन मार्केट ऑपरेशन OMOs में are the purchase and the sale of the government securities by Reserve Bank of India on the central's behalf to streamline the money supply and the interest rates. तो मनी कंट्रोल करने के लिए ये है. हम लोग देखेंगे उसको. अभी ये देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. अब देखो कि इन्फ्लेशन हाई है तो मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा है, 100 रुपीज़ है और कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है. अब अगर रिजर्व बैंक ने ये सिक्योरिटीज़ परचेस करी, फॉर एग्जांपल 20 रुपए की है, और ये 20 रुपए भी मार्केट में डाल दो, अब मार्केट में 120 रुपए होंगे, तो और मनी हो जाएगा और इन्फ्लेशन हो जाएगा. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज रॉन्ग. ठीक है. जहाँ जहाँ पे भी ए 1 है वहाँ पे हटा दो, आंसर रह जाता है बी 2 and 3. अब जो है इफ रूपी इज रैपिडली डिप्रिशिएटिंग, आरबीआई इज लाइकली टू सेल द डॉलर्स. अब सेल करने से क्या होगा, डॉलर्स मार्केट में आ गए और उसके बदले में यहाँ पे रूपी गवर्नमेंट के आरबीआई के पास चला गया, तो मार्केट से रूपी कम हो गया. तो जो रूपी रैपिडली डिप्रिशिएट हो रहा था वो मार्केट में अब रूपी कम होने से क्या हो जाएगा, वो डियरर हो जाएगा, वो डिप्रिसिएशन रुक जाएगा. सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. इफ द इंटरेस्ट रेट इन द यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल, दैट इज लाइकली टू इंड्यूस द आरबीआई टू बाय डॉलर्स. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इंटरेस्ट रेट अगर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा डॉलर मार्केट में आएगा, और ज़्यादा डॉलर मार्केट में आएगा तो ओवरफ्लो हो जाएगा, तो आरबीआई को डॉलर खरीदना पड़ेगा. तो इसका आंसर बी है. 2 and 3 आर करेक्ट. ठीक है. आगे चलते हैं. ठीक है. ये है अशोकन साइड से मेजर रॉकेट से लोकेशन है. धौली आपको पता है उड़ीसा में है, ईरागुडी आपको पता है आंध्र प्रदेश में है, जौगुड़ा भी उड़ीसा में ही है, पुरानी कलिंगा का पार्ट था ये, और कलसी जो है कर्नाटका में नहीं है, उत्तराखंड में है. तो इसका आंसर होगा ओनली 2, 1 and 2. बी इज द आंसर. आगे चलते हैं. Certain species of which one of the following organisms are well known as cultivators of fungi. तो इसका आंसर है एंट. तो फंगस जनरली अब
कुछ लॉजिक आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे लॉजिक ये है कि मैंने ये लगाया था कि ज़्यादा सॉइल के पास जो होगा, तो मैंने एंट लगा दिया था, ये सही हो गया था। अब कभी कभी ऐसे गलत भी हो सकता है, पर ठीक है, इस केस में वो सही हो गया था। नेक्स्ट वन, इन द नदर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली ऑकर्स इन दी सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ द 21 जून को आएगा। आपको मतलब ये बहुत ही इजी है, उसको सॉल्व करना भी वेस्ट ऑफ टाइम है। आगे, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज आर्मेनिया, अजरबैजान, क्रोएशिया, रोमानिया, उज्बेकिस्तान। विच ऑफ द अबव आर मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स। अब आपको ये समझना चाहिए कि टर्की के पास कौन से कंट्रीज हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया का वॉर चल रहा था, मैंने आपको जैसे पहले ही बोल दिया था। तो आपको इतना पता था कि अजरबैजान और आर्मेनिया में से कंट्री होगी। तो अगर आपने अजरबैजान पकड़ लिया और आर्मेनिया भी पकड़ लिया, तो भी आपको पता है कि डी नहीं है। आप देखिए, इसमें है अजरबैजान और उज्बेकिस्तान, यहाँ पे है आर्मेनिया एंड 3 है क्रोएशिया। क्रोएशिया यूरोपियन कंट्री है, यहाँ के होने के चांसेस बहुत कम है। रोमानिया तो बहुत ऊपर है, तो रोमानिया भी नहीं होगा। आंसर इसका सी आ जाता है 2 और 5। तो आपको ये अजरबैजान आर्मेनिया के वॉर के ऊपर देखो, मैप में आपको 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं। अगर आपको ये जो मैप ही अगर पता होता, तो आप कॉमन सेंस लगा के कितने आपके क्वेश्चन सही हो जाते। आपने ऊपर भी एक क्वेश्चन देखा था अफगानिस्तान के वहाँ पे, तो वहाँ पे आप एक ही सोर्स का नॉलेज यूज़ करके कितने क्वेश्चन सही कर सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस अप्लाई करना आना चाहिए। विथ रेफरेंस टू द प्रपोजल्स ऑफ क्रिप्स मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव द मेंबर्स नॉमिनेटेड by the provincial assemblies as well as the princely states. Any province which is not prepared to accept the new constitution would have the right to sign the separate agreement with the Britain regarding its future status. यहाँ पे nominated नहीं था, directly था, directly elected। तो इसलिए मैंने आपको कल ही बोला था कि जो एक्ट्स वगैरह है उसको अच्छे से पढ़ना है। हॉट टॉपिक है यूपीएससी का। 1 रॉन्ग है, बहुत भी नहीं आएगा। और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट था कि एनी प्रोविंस विच इज़ नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव द राइट टू साइन द सेपरेट एग्रीमेंट विद द ब्रिटिश रिगार्डिंग द फ्यूचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statement. A bill amending the constitution requires prior recommendation of the president of India. ये पहले, ये तो wrong है। When the constitution amendment bill is presented to the president of India, it is obligatory for the president of India to give his her assent. तो ये constitution amendment act 24 के थ्रू ये लाया गया था, उसके पहले नहीं है। ये जो भी सभी बिल का जो पार्ट है वो डिस्कस करा गया है आर्टिकल 368 में। ठीक है, तो और ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास बाय द स्पेशल मेजोरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर द जॉइंट सिटिंग। ये करेक्ट है। तो आपको अगर पता होगा तो पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो इसमें आप क्या लॉजिक लगाना है। पॉलिटी में कुछ लॉजिक लगाना ही नहीं है, वैसे आपको आना ही चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, 2 और 3 इज करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज द मिनिस्टर इनटू 4 रैंक्स। कहीं पे भी पढ़ा है क्या अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 रैंक्स? कैबिनेट ही एक बार मेंशन करा हुआ है, 4 रैंक्स तो कुछ है ही नहीं है। तो ये आगे पढ़ने की कोई wrong statement. The total number of ministers in the union government including the prime minister shall not exceed 15% of the total members of the Lok Sabha. तो आपको पता है ये 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था। एंटी डिफेक्शन का जो एक्ट है उसके थ्रू इसको लाया गया है, और इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। ओनली 2 इज़ करेक्ट। एंटी डिफेक्शन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं,
तो इसको बहुत अच्छे से करना। और अभी भी आने के चांसेस है महाराष्ट्र में जो चल रहा है न्यूज़ में, तो दे कैन आस्क क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम शेड्यूल 10, तो उसको अच्छे से करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर दी एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा टू रेटिफाई दी डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, to pass a motion of non-confidence against the Council of Ministers, to impeach the President of India। अब देखो, impeach President and ratify the Declaration of Emergency, ये दोनों कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे 1 और 3 है ना, इसको हटा दो, सिर्फ ओनली 2 कि नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकता है। पॉलिटी में पहले 35 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी पार्लियामेंट बहुत अच्छे से करना चाहिए। इस पे बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए। बाकी भी अच्छे से ही करना चाहिए, पर इसको और भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। विथ रेफरेंस टू द एंटी डिफेक्शन लॉ, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, फिर से एंटी डिफेक्शन का क्वेश्चन आया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, a law specifies that a nominated legislature cannot join any political party within 6 months of being appointed to the house। within 6 month ही करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो बोथ तो करेक्ट नहीं है, फर्स्ट भी नहीं है। द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज़ टू डिसाइड द डिफेक्शन के, सही है, सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। अब नाउ पॉलिटी के बारे में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू yesterday only, you should have the command over it। you can't apply logic every now and then everywhere, because you don't have that much time to play game of logic। थोड़ा तो आपके खुद के पढ़ाई पे भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विथ रेफरेंस टू द रिट्स issued by the courts in India, consider the following statement। mandamus will not lie against the private organization unless it is interested with the पब्लिक ड्यूटी। अब देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट द कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। जो ऊपर स्टेटमेंट है उससे एकदम कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट रॉन्ग है यार। 2 हटा दो, 2 हटा दिया, एक ही ऑप्शन बच जाता है सी 1 and 3। एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी पेटिशनर टू मूव टू द कोर्ट टू ऑब्टेन द रिट ऑफ क्यू वारंट। तो आंसर इज सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to deputy speaker of Lok Sabha, consider the following statements। as per the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha, the election of the deputy speaker shall be held on such a date as the speaker may fix। there is mandatory provision that the election of the candidate as deputy speaker of the Lok Sabha shall be from either the principal opposition party or the ruling party, not as such। second statement is wrong, second statement is wrong, ठीक है। third statement is, the deputy speaker has the same power as the speaker when presiding over the sitting of the house and no appeal lies against his ruling, is true। and the well established parliamentary practice regarding the appointment of deputy speaker is that the motion is moved by the speaker and the duly considered by the प्राइम मिनिस्टर इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। पढ़ के ही पता चल जाता है प्राइम मिनिस्टर क्यों करेंगे, अगर करेंगे तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर वगैरह करेंगे। तो इसका आंसर ए है। तो यहाँ पे भी ऐसे थोड़ा सा लॉजिक तो लग ही जाता है, मतलब अगर नहीं भी पता होगा तो, कि पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर क्यों करेंगे, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं वो करेंगे तो। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। हिस्टोरिकल पर्सन है नोन एज है, आर्यदेवा है, जैन स्कॉलर है, दिगनागा है, बुद्धिस्ट स्कॉलर है, नाथ मुनि है, वैष्णव स्कॉलर है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विच आर दी करेक्टली मैच। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, आपको पता होगा तो पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपके गलत होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे स्टेट में अगर आपको पता है तो भी आप अटेम्प्ट करें, अगर नहीं है पता तो यहाँ पे अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, हु ऑफ द फॉलोइंग वेयर नोन एज कुल्हाकरण।
दारन, सॉरी। तो सईद इज द आंसर। ये कुल्हा दारन मतलब ये जो पगड़ी पहनते थे सिर पे, तो उसको ये पगड़ी की वजह से, ये उनके डिस्टिंग्विश पगड़ी की वजह से उनको बोला जाता था कुल्हा दारन। डी है इसका आंसर। पता, अब इसमें देखो लॉजिक क्या लगाया जा सकता है। अरब मर्चेंट्स, कलंदर्स, पर्शियन कैलीग्राफिस्ट, इसमें से सबसे ज़्यादा नियरेस्ट क्या है? सईद। तो आप सईद मार सकते हैं। अब ये कोई लॉजिक नहीं है, ये थोड़ा सा रिस्क है, पर आप कर सकते हो ये। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द डच इस्टेब्लिश देयर फैक्ट्रीज, वेयर हाउसेज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑन लैंड्स ग्रांटेड टू देम बाय द गजपति रूलर्स। ठीक है। अल्फांसो द अल्बुकर्क captured Goa from the Bijapur Sultanate. The English East India Company established a factory at Madras on a plot of land leased from a representative of the Vijayanagar Empire. अब यहाँ पे देखो डच है। अब गजपति रूलर्स के बारे में आपको पता होगा कि नहीं होगा पता नहीं है, पर इतना तो था कि गजपति रूलर्स की सत्ता बहुत पहले ही चली गई थी। डच उसके बाद में आएगी। उनका फर्स्ट फैक्ट्री मुझे लगता है 1605 के आसपास इस्टेब्लिश हो गई। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो अगर हम लोगों ने फर्स्ट स्टेटमेंट हटा दिया तो आंसर कम्स 2 and 3। अल्फांसो द अल्बुकर्क कैप्चर गोवा फ्रॉम द बीजापुर सुल्तनत, ये सही है। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा तो ही आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा देख के रखा है कि गजपति रूलर्स इन उड़ीसा फ्रॉम 1434 टू 1541, डच फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। मछलीपट्टनम मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया था 1605 में हो गई थी। एंड ये सेकेंड है कि 1639 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रिसीव्ड परमिशन फ्रॉम लोकल राजा दरमाला वेंकटाद्री नायक टू इस्टेब्लिश फैक्ट्री एट मद्रास। और ये जो राजा था ये विजयनगर के रिप्रेजेंटेटिव थे, नायक जो थे। आगे का स्टेटमेंट है, कंसिडर द फॉलोइंग। आरोग्य सेतु, कोविन, डिजी लॉकर, दीक्षा, विच ऑफ द अबव बिल्ट ऑन द ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। मतलब ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म मतलब आप भी जाके उसको एडिटिंग वगैरह कर सकते हो, आपको सोर्स पता होता है। तो ये सभी चारों इसका ऑप्शन है। अभी इसमें आप देखो कि ये सभी इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म से, तो आप उसको वैसे लॉजिक लगा के इसका आंसर डी मार सकते थे। ठीक है, आगे। अकॉर्डिंग टू द कौटिल्या's अर्थशास्त्र, which of the following are correct? A person could be slave as a result of judicial punishment. फर्स्ट स्टेटमेंट आपको प्राइमा फेसी सुन के ही पता चलता है कि करेक्ट होगा उस जमाने के हिसाब से, बी चला जाता है। इफ अ फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर अ सन शी वॉज लीगली फ्री। अब ये हमको पता नहीं तो उसको रहने देते हैं। ठीक है। थर्ड, इफ अ सन बोर्न टू द फीमेल स्लेव वॉज फादर्ड बाय हर मास्टर, द सन वॉज इंटाइटल्ड टू द लीगल स्टेटस ऑफ द मास्टर सन। अब यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि अशोका, तो अशोका की माँ, ऐसा बोला जाता है, अब दिस इज़ अ कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट, कि स्लेव थी शायद या उनके यहाँ पे काम करती थी। तो अशोका वॉज अ स्लेव चाइल्ड, उसको भी स्टेटस ऑफ मास्टर सन मिल गया। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो हमको पता है कि करेक्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमको पता है कि करेक्ट होगा, तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऐसे दो ही ऑप्शन बच जाते हैं, सी एंड डी। अब हम लोगों को सी एंड डी में से एक को चूज करना है। द फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर सन शी वॉज लीगली फ्री। तो ये एक्चुअली में ये जो भी कंडीशन थे टू गेट फ्री फ्रॉम द स्लेवरी, तो उसमें से एक ये था, तो डी उसका ऑप्शन है। अगर नहीं भी पता था तो आपको 50-50 आप मार के आगे चले जा सकते थे, आपके आंसर सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू अ कैपिटल फ्लाइट।
अब सेकेंड, कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ द फर्म्स with existing external commercial borrowing. Devaluation of domestic currency decreases the currency risk associated with the external commercial borrowings. तो यहाँ पे देख लो, टाइट मनी पॉलिसी मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाई है. अब इंटरेस्ट रेट अगर हाई है यूएस में तो यहाँ से डॉलर वहाँ पे जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बैंक में डालोगे तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो यहाँ से कैपिटल फ्लाइट होगी. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ द फर्म्स विद एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग. ऑब्वियसली उनके पास पैसा कम रहेगा, तो ऑब्वियसली जो पैसा रहेगा उसमें से उनको एक्स्ट्रा कमर्शियल बोरिंग, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग के लिए और ज़्यादा महंगा हो जाएगा लोन. तीसरा है डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेज द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विद ईसीबीज. कम कैसे होगा, ज़्यादा होगा. फॉर एग्जांपल 80 रुपीज़ डॉलर है, अब उन्होंने $1 का लोन लिया है एक्सटर्नल कमर्शियल, कल अगर डिवैल्यूएशन हो गया 90 रुपीज़ हो गया. अब ऐसा कंसिडर करो कि 0 रुपीज़ पे ही लोन लिया है, फिर भी अगर उनको अभी $1 देने के लिए कंपनी को यहाँ पे तो 90 रुपीज़ देने पड़ने हैं, तब जाके यहाँ पे $1 हो रहा है. तो कंपनी को ऑलरेडी यहाँ पे कुछ भी इंटरेस्ट ना देके हुए भी 10 रुपीज़ ज़्यादा देने पड़े हैं. तो डिवैल्यूएशन से ऑब्वियसली कंपनी को कुछ करेंसी रिस्क कम नहीं हो रही है, तो बढ़ रही है. तो जो थर्ड है वो रॉन्ग है आंसर इसका. फिर क्या बच जाता है, आंसर बच जाता है ए. ठीक है, आगे देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट: आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा. हाउ मेनी अब आर जनरली नोन एज द टी प्रोड्यूसिंग स्टेट. अब यहाँ पे आपको पता ही होना चाहिए. इसका आंसर है कि आंध्र प्रदेश जनरली कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट है, केरल, हिमाचल प्रदेश एंड त्रिपुरा आर, ये तो यहाँ पे सी आंसर है. ओनली 3 स्टेट्स. अगर पता होगा तो पता होगा. यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, आपको ट्रिकी भी था, पर कोई बात नहीं, ऐसा 1-2 क्वेश्चन तो होते ही है. तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत वहाँ पे नहीं करना चाहिए. अगर कोई लॉजिक लगा सकता है तो लगा सकता है. अब मुझे नहीं लगा आया लॉजिक लगाने के लिए, कोई और दूसरा लगा सकता है, तो वैसे आप कर सकते हो. आगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. द रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नोन एज ICRA is public limited company and Brickwork Rating is an Indian credit rating agency. अब यहाँ पे देख लो कि क्रेडिट रेटिंग कंपनीज की करी जाती है, तो ये जनरली सेबी इसका ये करेगा, ना कि RBI. तो और यहाँ पे देखो कि क्रेडिट रेटिंग कर रही है, मनी के रिलेटेड डायरेक्टली नहीं है, तो RBI होने के चांसेस बहुत कम है. फर्स्ट का ये रॉन्ग होगा. जब अगर फर्स्ट आपने हटा दिया तो आपका सीधा आंसर आ जाता है 2 और 3. अब यहाँ पे ट्रिकी था, ब्रिकवर्क रेटिंग आपको लगेगा कि फॉरेन टर्म है, पर वहाँ तक जाने की ज़रूरत ही नहीं था, आपका आंसर उससे पहले ही आ रहा था. तो कभी कभी ऐसे भी ध्यान में रखा करो. आके विथ रेफरेंस टू द बैंक बोर्ड ब्यूरो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? द गवर्नर ऑफ RBI इज द चेयरमैन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो. BBB recommends for the selection of the heads of the public sector banks. BBB help the public sector banks in developing strategies and capital raising plans. अब ये BBB है, वो इसके लिए ज़्यादा न्यूज़ में था कि आर्टिकल 148 सब क्लॉज 4 यहाँ पे बोलता है कि कैग कोई भी फर्दर अपॉइंटमेंट नहीं ले सकता गवर्नमेंट ने. विनोद राय जो कैग थे, रिटायर्ड होने के बाद वो BBB के चेयरमैन बन गए. तो यहाँ पे ये सारा बवाल शुरू हो गया था. तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जिनको भी पता था ये न्यूज़, उनको पता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. उसके बाद तो आंसर ही आ जाता है. फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होने के बाद आंसर होता है B, 2 और 3. तो ऑब्वियसली ये सेकेंड स्टेटमेंट भी सही था एंड थर्ड स्टेटमेंट भी सही था. ठीक, तो ये बस ये आर्टिकल 148 सब क्लॉज 4 के रिलेटेड ये न्यूज़ यहाँ पे मैंने देख के भी रखी है. तो ये बोलता है आर्टिकल कि द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस ईदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट आफ्टर ही हैज़ सीज्ड
टू होल्ड हिज ऑफिस, बट यहाँ पे विनोद राय के केस में कुछ उन्होंने ऑफिस ये एक्सेप्ट करा था, उस पर ये सारा बवाल हुआ था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया इज़ द मेंबर ऑफ द अबोव, तीनों का मेंबर है। आप जिन्होंने भी पढ़ा होगा ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मैंने कल ही आपको बोल दिया था, उनको पता है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हमेशा न्यूज़ में रहती है, पाकिस्तान और इंडिया दोनों में वहाँ पे टसल चलती रहती है। अभी भी उनका कॉन्फ्रेंस चल रहा है, तो ये हम लोगों को पता है। और बाकी दोनों भी, इसका तो हम लोग फाउंडर मेंबर है। इसको भी हम लोग, इसका भी मेंबर बन गए थे 2017-18 के आसपास। तो ये सब करंट अफेयर्स में ही चल रहा था, तो इसका आंसर डी है। नीचे मैंने उसका दे के भी रखा है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ AIIB 2016 से। इंडिया इन 2018 बिकम दी ऑफिशियल मेंबर ऑफ वेपन्स रेगुलेटरी बॉडी, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। उसके बाद हम लोग अभी ब्रह्मोस मिसाइल बाकी कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं इस मिसाइल का पार्ट होने के बाद। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन शंघाई ऑन 15 जून 2001। हम लोग इसके फाउंडर मेंबर नहीं है, पर अभी करंटली ये 8 मेंबर्स है। और ये 8 मेंबर्स कौन से हैं? चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिज़िस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो ये है। एंड इंडिया बिकेम द परमानेंट मेंबर ऑफ SCO इन 2017। ठीक है, आगे चलते हैं। इन इंडिया which one of the following is responsible for maintaining price stability by controlling inflation? सबको पता है RBI इसका आंसर है। क्या RBI ही इन्फ्लेशन मैनेजमेंट करता है। ठीक है, with reference to foreign owned e-commerce firms operating in India, which of the following statements is are correct? आपको इतना पता होना चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी है टू प्रोटेक्ट स्मॉल मर्चेंट्स, मतलब दुकानदारों को। तो दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन एडिशनल टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म्स एज अ मार्केट प्लेसेस। दे कांट सेल देयर ओन गुड्स। मल्टी ब्रांड रिटेल इज नॉट अलाउड। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। जहाँ पे भी FDI है वहाँ पे मल्टी ब्रांड रिटेल इज नॉट अलाउड। 1 अगर हम लोगों ने हटा दिया। सेकेंड स्टेटमेंट, द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड। सेकेंड इज ट्रू, तो बिग सेलर अगर ज़्यादा होंगे तो छोटे व्यापारियों को तो चांस ही नहीं मिलेगा। सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यह ऐसे आप इसको, ये लॉजिक अगर होगा आपके पास तो आप इसका आंसर लगा सकते हो। नेक्स्ट, कंसिडर द पेयर्स। तो यहाँ पे आपको रिवर और उसके स्टेट दिया गया है। तो ये घटप्रभा तेलंगाना, गांधी सागर मध्य प्रदेश, इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये MP में ही है। और मैथन जो है ये झारखंड में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है? नॉट करेक्टली मैच। तो ये जो है घटप्रभा, ये भी तेलंगाना में नहीं है। तो आपका आंसर आ जाता है ओनली 3 पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया व्हाट इज द रोल ऑफ कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन? CCO इज द मेजर सोर्स ऑफ कोल स्टैटिस्टिक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके प्राइमा फेसी देखने से ही हमें पता चल जाता है कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो सेकेंड, इट मॉनिटर्स प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैप्टिव कोल लिग्नाइट ब्लॉक्स। थर्ड है, इट हेयर्स एनी ऑब्जेक्शन टू द गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशन रिलेटिंग टू द एक्विजिशन ऑफ द कोल बेरिंग एरियाज। फोर्थ है, इट इंश्योर्स दैट कोल माइनिंग कंपनीज डिलीवर द कोल टू इंड यूजर्स इन दी प्रिस्क्राइब टाइम। अब ये थोड़ा सा बहुत ही ओवर फेज है, अगर हम लोग उसको एलिमिनेट कर दें तो इसका आंसर ये आ जाता है। अब मुझे
जब मैं अटेम्प्ट कर रहा था तो सिर्फ मैं ये ही कर पाया, तो मैं ये इन तीनों में कंफ्यूज था, बट आई अटेम्प्टेड इट बिकॉज आई कुड एलिमिनेट वन ऑप्शन। ठीक है, तो यू शुड गो विद इट इफ यू कैन एलिमिनेट वन ऑप्शन। नेक्स्ट, consider the following statement: India Sanitation Coalition is a platform to promote the sanitation and is funded by the Government of India and the World Health Organization. The National Institute of Urban Affairs is the apex body of the Ministry of Housing and Urban Affairs in the Government of India and provides innovative solution to address the challenges of the urban India. अब यहाँ पे इसके बारे में सच में कुछ आइडिया नहीं था, आपको पता होगा, तो मुझे इसका आंसर लगा था सी, बट इसका आंसर एक्चुअली था बी। तो कभी कभी ऐसा आपके लॉजिक के साथ खेल हो जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अटेम्प्ट करना कम करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986? तो देखो, सेंट्रल वाटर कमीशन है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है और नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी है। आपको पता होगा तो आपको आएगा, नहीं होगा तो थोड़ा सा मुश्किल है। आपको इसके बारे में कुछ भी पता होगा कि ये कब इस्टेब्लिश करा है। अब आई न्यू कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी वाज इस्टेब्लिश अराउंड 1986, तो आई कुड डू अ इंटेलिजेंट गेसिंग, बट अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, आगे। तो यहाँ पे वेटलैंड्स दिए हुए, लोकेशन दिए है। होकेरा वेटलैंड आपको सबको पता है कि JNK में है। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, रुद्रसागर त्रिपुरा और सस्तमकोंडा है केरला में। केरला में है, तो इसका आंसर ऑब्वियसली ओनली 2 आएगा। कौन सा? रुद्रसागर त्रिपुरा एंड रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आगे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: हाई क्लाउड्स प्राइमरीली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ द अर्थ, लो क्लाउड्स have high absorption of the infrared radiation emanating from the earth surface and thus cause warming effect। ये बेसिकली उन्होंने चेंज करा था स्टेटमेंट, इंटरचेंज करा था। इसका आंसर डी है, नन ऑफ द अबव। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको आएगा। अब कुछ हर चीज़ में लॉजिक नहीं लगता है, जहाँ पे आपका कोर सब्जेक्ट का नॉलेज होगा वही यूज़ करना पड़ेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ द वेस्ट अफ्रीका हैज़ बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू डेजर्ट? मुझे इतना पता था कि लेक विक्टोरिया इज़ वेरी बिग लेक, 3 कंट्रीज को बॉर्डर करता है। ये तो नहीं सूखेगा, बाकी तीनों में से फिर एक मारना था, 3 रह जाते हैं। मैथमेटिक प्रोबेबिलिटी से हम लोगों को अटेंड करना चाहिए, हम लोग पॉजिटिव में ही रहेंगे। तो मैंने मेरा आंसर मारा था बी, जो कि सही हो गया था। जैसे ओल्टा भी बड़ा लेक लग रहा है, मैंने सुना था, तो इसका आंसर ये और इसमें से ही हो सकता है। थोड़े से अननोन लेक्स थे तो छोटे होंगे और उसके सूखने के चांसेस भी ज़्यादा है। ठीक है, आगे देखते हैं। गांधीकोटा कैनियन ऑफ साउथ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? तो यहाँ पे भी मुझे मंजीरा के बारे में आई हैड थोड़ी सी नॉलेज। कावेरी आई न्यू कि इट इज़ नॉट। तो पेन्नार एंड तुंगभद्रा के बीच में रह जाता है, तो आप 50-50 रह जाता है, तो यू कैन अटेंड इट। इसका आंसर पेन्नार है ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: BDBD इज़ अ लार्ज रेफ्यूजी सेटलमेंट इन दी। यहाँ पे आपको पता होगा तो पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो आपका आंसर नहीं आएगा। हम लोग देखते हैं। BDBD इज़ अ लार्ज रेफ्यूजी सेटलमेंट इन द नॉर्थ वेस्टर्न केनिया। सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम द साउथ सुदान सिविल वॉर लिव इन BDBD। सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम सिविल वॉर इन सोमालिया लिव इन दाबाब refugee complex in Kenya. Which of the above statements are correct?
इसका आंसर है 2 and 3। तो यहाँ पे अब आपको पता होगा करंट अफेयर तो आपको आएगा, नहीं पता होगा तो यू कांट सॉल्व इट। ऐसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व छोड़ने चाहिए जिसके बारे में आपको कुछ भी आइडिया नहीं है। यहाँ पे आपको तुक्का लगाना काम नहीं आएगा। द टर्म लैवेंड ऑपन हर्ड इन द न्यूज़ रफली करस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। ये मैंने पढ़ा हुआ था ऑलरेडी, तो आई न्यू इट। तो लैवेंड मतलब ये फ्रेंच टर्म होती है, इसका मतलब होता है टू राइज। तो मुझे ये ईस्ट से होगा, तो रीजन ऑफ द ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर्स, इसका आंसर ये है। नहीं पता है तो छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। यू हैव अटेम्प्टेड लॉट ऑफ क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चन छोड़े तो भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। डोंट डू रट्टाफिकेशन या फिर कुछ भी तुक्का मारने का, उससे अच्छा है कि आप छोड़ दो। कंसिडर द फॉलोइंग चार्ट सेटिंग अप द परमानेंट मिलिट्री बेस बाय द चाइना। ये नहीं है, चार्ट में नहीं है परमानेंट सेट उनका बेस, ये पता था। नीचे के बारे में आई हैड नो आइडिया, बट सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री, सीवियर एंड प्रोलॉन्ग इकोनॉमिक डिप्रेशन, सस्पेंशन ऑफ पार्लियामेंट बाय प्रेसिडेंट, ये सब कुछ ऐसा हो सकता है। तो इसका आंसर ओनली 3 पेयर्स है। फर्स्ट चार्ट के बारे में पता था कि देयर इज़ नो एज सच कोई मिलिट्री बेस ऑफ चाइना, तो आपका मतलब आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। आगे का क्वेश्चन है रीजन्स और कंट्री। एनातोलिया टर्की में है, अम्हारा इथियोपिया में है, काबो दिलगाडो ये नहीं है स्पेन में, उसके बाद कैटालोनिया ये है स्पेन में। तो ये हम लोगों को बताया कि 2 करेक्ट है और बाकी के 2 रॉन्ग है, तो इसका आंसर बी होगा। और ये काबो डेलगाडो दूसरे इसमें, अब मुझे तब नहीं पता था, तो मुझे सिर्फ वहाँ पे इतना पता था कि एनाटोलिया टर्की में है, मैं न्यूज़ में पढ़ा था, और कैटालोनिया स्पेन में है, यहाँ पे रेफरेंडम लेने की बात चल रही थी। ये 2 मुझे पता था, तो मुझे पता था कि एक रॉन्ग है एक करेक्ट है। अब मुझे पता था कि ऑल ऑफ द 4 नहीं है और इसमें से एक ऑप्शन हो सकता है, तो फिर मैं ऑब्वियसली बी के साथ गया था और वो करेक्ट आंसर हो गया था। तो आपको अगर पता है ऐसा नॉलेज तो आप उसको कर सकते हो अटेम्प्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे रूलर्स दिया हुआ है और कितने पेयर से। नानुका है, जय शक्ति है, नागभट्टा सेकंड है, भोजा है, और चंडेला, परमारा, गुर्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ था, तो इसका आंसर है ओनली 2 पेयर्स करेक्ट है। नानुका तो फाउंडर ऑफ चंडेला डायनेस्टी, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। जय शक्ति वॉज द 9th सेंचुरी रूलर ऑफ चंडेला, तो ये सेकंड जो है ये रॉन्ग है। उसके बाद नागभट्टा वॉज गुर्जरा प्रतिहारा किंग, तो ये भी सही है। और भोजा जो था ये राजा भोज परमार वॉज किंग फ्रॉम दी परमारा डायनेस्टी, तो ये रॉन्ग था, ये चंडेला ही था। तो ये 2 करेक्ट हो गए, तो इसका आंसर ओनली 2 पेयर्स। अब जिसको नहीं पता था उन्होंने नहीं करना चाहिए था, मुझे इसके हाफ ये पता था तो मैंने उसको अटेम्प्ट करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच one of the following statement best describe the role of B cells and T cells of the human body. They protect the body from environmental allergens, they elevate the body's pain and inflammation, they act as immunosuppressants in the body, and 4 they protect body from the diseases caused by the pathogens is correct answer। आपको थोड़े भी आइडिया होगी तो ये आपको आ जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एन इंक्रीज इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स द एप्रिसिएशन ऑफ रुपी। सेकेंड, द इंक्रीज इन रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट indicates an improvement in trade competitiveness
An increasing trend in domestic inflation relative to inflation in other countries is likely to cause an increasing divergence between near and real. यहाँ पे देखो नॉमिनल एंड रियल, मुझे जीडीपी के बारे में पता है, अगर आपको पता है कि नॉमिनल एंड रियल जीडीपी में क्या फ़र्क होता है, इन्फ्लेशन एडजस्ट करा होता है, तो यहाँ पे अगर इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं करा है तो इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो नीर और रीर में फ़र्क बढ़ेगा। थर्ड स्टेटमेंट शुड बी ट्रू, तो ए चला गया। और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इंडिकेट्स द एप्रिसिएशन ऑफ रूपी, ये भी सही है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव रेट इंडिकेट्स एंड इम्प्रूवमेंट इन द ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, ये मैंने पढ़ा नहीं था, मुझे पता भी नहीं था, तो जो मेरा अंडरस्टैंडिंग था आई वेंट विथ सी 1 and 3। ठीक है, नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू G20 कॉमन फ्रेमवर्क कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इज इनिशिएटिव इंडोर्स्ड बाय द G20 टुगेदर विद द पेरिस क्लब। इट इज़ एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट द लो इनकम कंट्रीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई हैड नो आइडिया, इसका आंसर बी था। अगर आपके पास कुछ होगा तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे G20 कॉमन फ्रेमवर्क था तो मैंने 1 करेक्ट माना था, सेकेंड आई हैड नो आइडिया, बट ऑब्वियसली 50-50 हो जाता है तो फिर आप अटेम्प्ट कर लेते हो। आगे का क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। अब यहाँ पे देख लो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड है तो गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट ऑन इट्स बोरोइंग बाय द वे ऑफ IIBs। क्योंकि ये रिड्यूस करेगा तो यहाँ पे इन्फ्लेशन इंडेक्स है, मतलब इन्फ्लेशन जैसे बढ़ेगा, इन्फ्लेशन +1 अगर होगा तो उतना इंटरेस्ट मिलेगा, तो गवर्नमेंट इसका रेट कम कर सकता है क्योंकि बोरोवर को भी और जो ले रहे हैं उनको भी दोनों को फायदे में रहेगा, तो ये हो सकता है। IIBs प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर्स फ्रॉम अनसर्टनिटी रिगार्डिंग द इन्फ्लेशन। ऑब्वियसली इन्फ्लेशन इंडेक्स ही है तो सेकंड भी ट्रू होगा, तो 1 and 2 दो करेक्ट होंगे, जहाँ पे भी 1 and 2 नहीं है उसको हटा दो। थर्ड है द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन्स ऑन दी IIBs आर नॉट टैक्सेबल। क्यों नहीं नॉन टैक्सेबल है, दिस इज द इनकम, तो थर्ड स्टेटमेंट शुड बी रॉन्ग, तो इसका आंसर आ जाता है ए 1 and। अगर यहाँ पे आपको नहीं पता होगा तो आप सिर्फ लॉजिक से इन्फ्लेशन इंडेक्स इतना भी देख के यू कैन एक्चुअली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन देखा करो, अगर नहीं भी पता है ना तो उसको ना घबराते हुए आप उसको ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स ऑफन टॉक्ड अबाउट इन मीडिया रिसेंटली विथ रेफरेंस टू इंडिया। तो इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स क्या होते हैं, तो बेसिकली ये टैक्स अवॉइडेंस का एक ये है। इसमें ये होता है कि कंपनी का बेसिक यहाँ पे सब एसेट होते हैं पर वो ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे कंपनी को जो फॉरेन में होती है रजिस्टर। एन इंडियन कंपनी इन्वेस्टिंग इन अ फॉरेन एंटरप्राइज एंड पेइंग टैक्सेस टू द फॉरेन कंट्री ऑन द प्रॉफिट अराइजिंग आउट ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट नहीं है, और फॉरेन कंपनी इन्वेस्टिंग इन इंडिया एंड पेइंग टैक्सेस नहीं है। एन इंडियन कंपनी परचेसेस इंटेंजिबल एसेट्स in a foreign country and sell such asset after their value increases and transfer the proceed to India, ये भी नहीं है। A foreign company transfer share and such shares derives their substantial value from the assets located in India। ये वोडाफोन के इसमें हज के इसमें ये सब ये था कंट्रोवर्सी थी। आपने अगर पढ़ा होगा तब तो आपको ये पता होगा, ये इकोनॉमिक्स के बुक्स में डायरेक्टली दिया हुआ है। आगे का क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ शेयर ऑफ हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग गोज टुवर्ड द गवर्नमेंट बोरोइंग। ट्रू, क्योंकि बैंक से पैसे बोरो करती है गवर्नमेंट। सेकेंड, डेटेड सिक्योरिटी इशूड एट मार्केट रिलेटेड रेट्स इन ऑक्शंस फॉर्म अ लार्ज कंपोनेंट ऑफ द इंटरनल डेप्ट। लार्ज बोला है, बिगेस्ट नहीं बोला है, तो लार्ज हो सकता है। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, इसका आंसर है सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वैक्सीन मैन्युफैक्चरर प्रिवेंट्स कोविड-19 पैंडेमिक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसमें आपको पता होगा तो पता होगा, नहीं पता होगा तो आपको आंसर नहीं आएगा। इसका आंसर बी था, 2 and 3 आर करेक्ट। जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस कोविड-19 वैक्सीन नेम कोविशील्ड यूजिंग
RNA प्लेटफॉर्म, तो आपको अगर पता होगा तो आप दे सकते हो इसका आंसर, नहीं पता होगा तो नहीं। कोवैक्सीन इज एन इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन। अब ये आपके करंट अफेयर में था, तो जिन्होंने करंट अफेयर करा था और तो इनका ये सही होगा। तो ये बहुत ही न्यूज़ में था, तो ये आपको करना ही चाहिए था। बस स्पुतनिक के बारे में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता था, पर आपको बाकी दो तो पता थे, तो आपका आंसर आ सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू है टेक्नोलॉजी एक्वायर कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी एक्वायर कर रहे हैं, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जब भी आप कोई न्यू टेक्नोलॉजी एक्वायर करते हो या नया कोई भी टेक्नोलॉजी या फिर R&D या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इस पे खर्चा करते हो, तो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। और रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू मतलब उसको आप अपगोइंग करने के लिए, उसको वर्क करने के लिए, जैसे कि सैलरीज होती है जिसमें आप कोई नई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, नई फैसिलिटी क्रिएट नहीं कर रहे हो, उसको बोलते हैं रेवेन्यू। अब यहाँ पे देखिए, डेब्ट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, फाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो, डेब्ट से भी आपको पैसा मिलेगा एंड यू विल आल्सो गेट मनी फ्रॉम इक्विटी। इक्विटी फाइनेंसिंग मीन्स व्हाट, कि कंपनी give up some of his equity, for example 10% to public, and they raise money, and this money is used for what? Creation of new technology, new infrastructure. So both debt financing and equity financing, जहाँ से भी आप पैसे उठा रहे हो, is actually what? Is actually capital expenditure. तो both, this first statement is to prima facie correct, and second statement, if you understanding what financing means, तो you will understand कि both are actually a capital expenditures method. तो both are correct. The answer is C, both 1 and 2. Then almost last or second last question, which of the following activities constitute real sector in the economy? Now what are the real sector? The definition of real sector is what, कि which contribute to GDP डायरेक्टली। तो जो कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी को डायरेक्टली, वो बोलेंगे हम लोग रियल सेक्टर। अब फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, यहाँ पे फार्मर्स का क्रॉप है, डायरेक्टली एग्रीकल्चर ग्रोथ आपकी जीडीपी को कंट्रीब्यूट करेगा। टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग, तो ये है मैन्युफैक्चरिंग, ये भी करेगा। कमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू ट्रेडिंग कंपनीज एंड कॉरपोरेट बॉडी इशूइंग रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ओवरसीज। अब यहाँ पे देखो, ये कॉरपोरेट बॉडी है इशूइंग रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड। अब ये उन्होंने कर्जा उठाया है, इट इज़ नॉट एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी एज सच। जीडीपी इससे बूस्ट नहीं होगा। ये कोई यहाँ से, ये कोई हम लोगों को, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसमें कोई सैलरी नहीं है, या इसमें ये मनी डायरेक्टली जीडीपी में नहीं आ रहा है, इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट, उससे आगे जाके ग्रोथ हो सकता है। तो इट इज़ नॉट डायरेक्टली अ रियल सेक्टर। तो फोर्थ है, जहाँ जहाँ पे भी फोर्थ है उसको कट कर दो, आंसर क्या आ जाता है? 1 and 2 ओनली। यहाँ पे अब कुछ लोगों का ये है कि कमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू द ट्रेडिंग कंपनी, ये बोल रहे हैं कि टर्शरी सेक्टर है, बट ऑप्शन में आपको ऐसा ऑप्शन ही नहीं है जहाँ पे 1, 2 and 3 होगा। अगर होता तो हम लोग जरूर करते। यहाँ पे आंसर हम लोगों को एक ही अवेलेबल रहता है, विच इज़ 1 and 2 ओनली। तो इसका आंसर ए है। So this question, the climate action tracker which monitors the emissions reduction pledges of different countries is। अब यहाँ पे आपको पता होगा तो आप इसको दे सकते हैं। ये बेसिकली करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगर आपको पता नहीं है तो आप इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं?
तो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर डेटाबेस क्रिएटेड बाय कोएलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रैकर है, और ट्रैकर क्या करेगा, डेटाबेस कलेक्ट करेगा। सेकेंड थिंग देखिए, विंग ऑफ इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। अगर ये विंग होगी तो ये ट्रैक कैसे करेगी, ये कोई और काम करेगी। फॉर एग्जांपल क्या करेगी, एडवाइजरी, है ना। तो इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज बेसिकली क्या करता है, दे गिव अस आइडिया कि हाउ टेम्परेचर इज रीजन ओवर द प्री इंडस्ट्रियल टाइम, और क्या सॉल्यूशंस है। तो बी होने के चांसेस कम है। कमिटी अंडर द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे हम लोगों को पता है, हम लोग हर साल इसको फॉलो करते रहते हैं। इट इज़ पार्ट ऑफ शंकर, और शंकर में हमने आज तक ये कभी पढ़ा है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। अगर इट इज़ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन UNEP तो हम लोगों ने ज़रूर यहाँ कहीं ना कहीं पे ये पढ़ा होता, और शंकर में इसको एक्सटेंसिवली एक पार्ट में कवर करा हुआ है, हम लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी इज़ कि इसका पार्ट होने के चांसेस आर वेरी लेस। एजेंसी प्रोमोटेड एंड फाइनेंस बाय यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम एंड वर्ल्ड बैंक। अब यहाँ पे देखो, इन्वायरमेंट प्रोग्राम तो कर सकता है, वर्ल्ड बैंक यहाँ पे क्या कर रहा है, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर में ना पैसा चाहिए ना फंड चाहिए। वर्ल्ड बैंक यहाँ पे क्या कर रहा है, तो ये एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना, इससे हमें पता चल रहा है कि वर्ल्ड बैंक हैव टू नथिंग टू डू विथ दिस थिंग। तो आप यहाँ पे इंटेलिजेंट गेसिंग के थ्रू ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये आंसर हो सकता है। आप कहीं पे कंफ्यूज भी हो जाओगे दो ऑप्शन में, फिर भी आप 50-50 रहते हो ना, तो 50-50 करोगे तो भी आपके आंसर सही होने के चांस इज़ अराउंड 50%। तो इसका आंसर ऑब्वियसली ये आता है। अगर आप इसमें से एक भी एलिमिनेट कर पाते हो तो भी आई विल रिकमेंड कि गो विथ इट। तो ऐसे हम लोगों ने आज पूरा 2022 का पेपर देखा है। एक क्वेश्चन ये है कि द ऑफिशियल आंसर की इज़ नॉट आउट, सो कपल ऑफ क्वेश्चंस विच आर लिटिल बिट कंट्रोवर्शियल, उसके आंसर may be different than what we have discussed, but the real reason is not to tell you the answers. The purpose of this lecture is कि how to approach, how to have the logic and the intelligence guessing to tackle the question paper and attempt more than 80 questions and score more than 120 marks. So don't go in nitty-gritties कि this answer is different in this different question paper, different some institute. Just understand it for your understanding how to eliminate the questions and go towards the right answer. Thank you very much. Tomorrow we'll see the next question paper of year 2021.